Hello, Cancer people. Welcome to my reading. This is a reading based on manifestation, positive affirmation, and it will be followed by the guidance in the last section. Couple of guidances, I should say. Okay, so Cancer people, basically, it's a general reading for all the Cancerians. Take it as it resonates with you. Maybe since this reading is based on manifestation and positive affirmation, maybe it could be that it might fit. For some Cancerians, it might fit in professional life. For some Cancerians, it might fit in personal life. For some Cancerians, it might fit in love life. For some Cancerians, it might fit in self, for your own self. So, life in general. Basically, take it as it resonates with you, Cancerian people. Okay? जबरदस्ती फिट मत कीजिए. जो रेजोनेट करता है, मैच करता है, उस फैक्टर्स को लीजिए और गाइडेंस को अटेंशन दीजिए. पे हीट टू द गाइडेंसेस. I'll be using 4 decks out here. This is a positive affirmation deck. I've already chosen and picked up a card for manifestation. Universe, please guide the Cancer people and let them know what they need to know. This is a positive affirmation deck, so I'll pick up one card from this deck. Okay. Next, I'll be moving to the guidance part. I'll use 2 decks, 2 oracle decks for the guidance part. Angel guidance from the universe also, you can say that. Though all these 4 cards will have guidance, so you need not worry for the guidance. But pay heed to the guidance. जो ज़रूरी है चेंजेस लाना आपके लाइफ में, वो ज़रूर लाए, तभी पॉसिबल होगा बेटर लाइफ. ओके. And the last part is the guidance from the Archangel Michael. Okay. Universe, please guide the Cancer people. Let them know what they need to know. Please let them know what they need to know. What changes do they need to bring in their life in order to enhance and better their life. Please guide the Cancer people, universe. Please let them know what they need to know. Okay, so starting with your reading, Cancer people. जैसा मैंने कहा, take it as it resonates with you. It could be for different Cancerian. It will be different fields, professional field, work area, personal life, love area, family life, self, कुछ भी हो सकता है. So take it as it resonates with your own life. Okay. Okay. The first manifestation card says, before you think another thought. Before you think another thought. What does it mean? Every thought will manifest unless you cancel it out with an opposing thought. So think before you think, actually. इसका मीनिंग यही हुआ. Think before you think a thought. क्योंकि जो आप सोचेंगे वही आपका लाइफ होगा, क्योंकि वही मैनिफेस्टेशन होगा. इन द फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन वही आएगा. सो बिफोर यू थिंक अनदर थॉट, एवरी थॉट विल मैनिफेस्ट अनलेस यू कैंसिल इट आउट. आप जो सोचेंगे वही मैनिफेस्टेशन होगा. मेरे यूट्यूब चैनल पे मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी वीडियोस है, पॉजिटिव एफर्मेशन के ऊपर भी वीडियोस है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है इन सब बारे में मेरे वीडियोस में मैंने मेंशन किया है. प्लीज़ उसे रेफ़र करें. इसी डिवाइन ब्लेसिंग चैनल पे मेरे सब वीडियोस हैं मौजूद, वहाँ पे प्लीज़ उसे देखें, रेफ़र करें, गाइडेंस ले, वहाँ से अपने लाइफ को बेहतर कीजिए, कैंसर पीपल. सो इट सेज एवरी थॉट विल मैनिफेस्ट. हम लोग जो सोचते हैं वैसा ही होता है.
चाहे इमीडिएट हो, चाहे कुछ साल बाद हो, चाहे अगले जन्म में हो, लेकिन होता ज़रूरी है। जो आपका सोच है वही आपका कर्मा है। ओके, एक्शन उसी हिसाब से होता है, जो हम लोग सोचते हैं ना वही करते हैं या फिर करने का मन करता है। सो एवरी थॉट विल मैनिफेस्ट अनलेस यू कैंसिल इट आउट विथ एन ऑपोजिंग थॉट। जब तक आप कोई ऑपोजिंग थॉट से कैंसिल नहीं करेंगे, अगर कुछ गलती वाली थॉट्स आप क्रिएट कर चुके हैं तो प्लीज़ उसे ऑपोजिंग थॉट के साथ कैंसिल करें, यही कहा जा रहा है इसमें। अगर थॉट सही है तो कुछ बोलने लायक बात नहीं है, वेरी गुड, मूव अहेड, कीप गोइंग। लेकिन अगर कुछ गलत थॉट आपने पैदा किया है, क्रिएट किया है, बिकॉज वी हैव द पावर टू क्रिएट थॉट्स, यू नो, सो ऑलवेज क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स। इसीलिए मैंने पॉजिटिव एफर्मेशन का कार्ड भी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि क्या पॉजिटिव एफर्मेशन करना चाहिए फॉर यू कैंसर, सिंस इट्स अ कैंसर रीडिंग। सो मूविंग ऑन टू द पॉजिटिव एफर्मेशन कार्ड, यू नीड टू से पॉजिटिव एफर्मेशन। क्या करेंगे, कैसे पॉजिटिवली एफर करेंगे, ये बोलना है अपने आप को। आई एम फिल्ड विथ लव, आई एम फिल्ड विथ लव। कैंसर पीपल, दिस इज योर पॉजिटिव एफर्मेशन। दिस कार्ड हैज़ कम आउट फॉर यू स्पेसिफिकली। हो सकता है आप अनलव्ड फील कर रहे हैं, किसी भी वजह से हो, किसी के लिए हो, किसी के लिए अपने आप को अनलव्ड मत फील करवाइए। नो, सेल्फ लव को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने आप को कंप्लीट कीजिए अपने आप से, किसी और की वजह से नहीं। ये गलत सोच है, गलत ढंग है सोचने का कि दूसरे हम लोग को कंप्लीट करते हैं। नहीं, हम लोग खुद अपने आप को कंप्लीट करते हैं या फिर इनकम्प्लीट रखते हैं। तो I am filled with love. If you feel incomplete, my dear Cancerians, please say this to yourself. Then this positive affirmation card is for you. Say this to yourself many times a day. जब तक आप complete ना feel करें अंदर से, healing ना हो आपके अंदर. And also make a habit of writing it down, you know. Maintain a diary. मैं हमेशा कहती हूँ, maintain a diary and write it down. राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज राइटिंग इज़ वेरी वेरी पावरफुल। सो से दिस टू योर सेल्फ एंड राइट इट डाउन, आई एम फिल्ड विथ लव। ये मैसेज तब यूनिवर्स तक पहुंचेगा आपके लिए, और यूनिवर्स उस हिसाब से फिर आपके लिए काम करेगा। इट विल फिल यू विथ लव एंड यू विल फील कंप्लीट विद इन योर सेल्फ। तब कोई खालीपन, खोखलापन अंदर से नहीं लगेगा। शायद आपको अब ऐसा लग रहा होगा, इसीलिए हो सकता है ये मैसेज पर्टिकुलरली आपके लिए आया, कैंसेरियंस। सो से दिस टू योर सेल्फ, आई एम फिल्ड विथ लव। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्सेस लव टू फिल माई सेल्फ विथ लव। आई कैन फिल माई सेल्फ विथ लव। आई हैव दैट पावर, आई हैव दैट क्रिएटिविटी विद इन मी, आई हैव दैट एबिलिटी विद इन मी। अपने आप को ये बोलिए, ये समझाइए, ओके, एंड देन सी द चेंजेस, देन सी हाउ फुलफिल्ड यू विल बी एंड यू विल फील। ओके, मूविंग ऑन टू द गाइडेंस पार्ट, कैंसर पीपल। renewed connections. This card says renewed connections, reunion, reconciliation, sorry, इंटीमेसी, फॉरगिवनेस। हो सकता है, हाईली पॉसिबल, इसीलिए ये कार्ड आया है। हो सकता है आपके लव लाइफ में, यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहा है, लव लाइफ में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, शायद रिश्ता टूटा है, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए वहाँ से आपको दुख दर्द मिल रहा है, आप आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। माय डियर, इनकम्प्लीट किसी और वजह से या किसी और के लिए आप इनकम्प्लीट मत फील कीजिए। नो, इट्स नॉट राइट, सर्टेनली इट्स नॉट राइट। दैट्स व्हाट आई सेड जस्ट नाउ। बी कंप्लीट विद इन योर ओन सेल्फ। हम सब में ये ताकत है कि हम लोग अपने आप में कंप्लीट फील करें, किसी और के वजह से हम लोग प्यार ना करें,
खुद से प्यार करें पहले। अगर खुद के पास प्यार भरा हुआ होगा, सेल्फ लव होगा, तभी आप दूसरों को प्यार दे पाएंगे या फिर प्यार कर पाएंगे। अगर आपके पास वो चीज़, वो सामान ना हो तो आप दूसरों को कैसे देंगे? Isn't it? सो हो सकता है आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ पे रिन्यूड कनेक्शन की बात आई है। हो सकता है टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाए, इसीलिए शायद आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। तो अपने आप को बोलिए, आई एम फिल्ड विथ लव, आई एम फिल्ड विथ लव। कनेक्शन को रिन्यू कीजिए। उससे पहले मैं बोलूँगी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप को लव से फील कीजिए। सेल्फ लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर कैंसेरियंस। सेल्फ लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो रीयूनियन पॉसिबल है, रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है, इंटीमेसी पॉसिबल है, फॉरगिवनेस पॉसिबल है। फॉरगिव दैट पर्सन। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है प्यार में, तो या फिर कोई भी फील्ड हो, प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है, किसी ने कुछ गलत किया, कनेक्शन टूटा है उस इंसान के साथ, फैमिली लाइफ हो सकता है, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ हो सकता है, कनेक्शन टूटा है, या फिर खुद से खफा है किसी वजह से, ये भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे आया है, आई एम फिल्ड विथ लव, से दिस टू योर सेल्फ। सो ये सब चीज़ें पॉसिबल है कैंसर पीपल। So pay heed to all these guidances and do the necessary changes. Moving on to the next part of the guidance, let's see what the Archangel has to say. Let it go. Let it go. यहाँ पे देखिए forgiveness की बात आई थी। लेट इट गो हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोग फॉरगिव कर देते हैं उस इंसान को जिसने हमारे साथ गलत किया कुछ, हम लोग फॉरगिव कर देते हैं। अगर आप पकड़ के रखेंगे तो नुकसान आपका ही होगा, हमेशा ये जानिए, क्योंकि आपका सुख, शांति, चैन सब कुछ चला जाएगा अगर आप उस नेगेटिव बात को पकड़ के रखेंगे। लेकिन अगर आप रिलीज़ करेंगे या फिर कर सकते हैं, ये हिम्मत, ये ताकत आप में अगर है, तो आप फॉरगिव कर सकते हैं उस इंसान को। और व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यू आर लेटिंग इट गो, लेटिंग दैट फैक्ट और सिचुएशन गो फ्रॉम योर माइंड, और लेटिंग दैट पर्सन गो फ्रॉम योर लाइफ, गो फ्रॉम योर माइंड। यहाँ से चला जाए तो बस वही काफ़ी है, वही सब कुछ है। लाइफ से तो कभी कभी ऐसा होता है, लाइफ से इंसान दूर चला जाता है, लेकिन एनर्जी फील्ड जो कि थॉट से क्रिएट होता है, वहाँ से इंसान दूर नहीं जाता है, या फिर हम लोग दूर नहीं कर पाते हैं। सो एनर्जी, थॉट इज़ एवरीथिंग। दैट इज़ द बॉटम लाइन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। सो कैंसर पीपल, लेट इट गो करने के लिए कहा गया है आपको यूनिवर्स की तरफ से। सो फॉरगिव कीजिए, फॉरगिव करेंगे तभी फिर वापस आएंगे। किसी कैंसेरियंस के साथ हो सकता है फॉरगिव के साथ साथ आप लोग कनेक्शन रिन्यू करेंगे, रिकन्सिलिएशन होगा, रीयूनियन होगा, या फिर किसी कैंसेरियंस के साथ हो सकता है उस इंसान को लेट गो कर रहे हैं, या फिर उस बात को, उस मुद्दे को लेट गो कर रहे हैं, तब जाके रीयूनियन हो रहा है। बी बिग, बड़ा बनिए, फॉरगिव कीजिए। या फिर अब आप अगर गलती किए हैं किसी कारण, किसी वजह से, तो खुद को फॉरगिव कीजिए, ये भी ज़रूरी है। हम लोग कभी कभी खुद को क्षमा नहीं करते हैं, गिल्ट में रहते हैं। नहीं, कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं चलेगा, खुद को क्षमा कीजिए पहले। जैसा आपका सिचुएशन होगा वैसे, अगर खुद के लिए होगा तो खुद को फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए उस बात को। अगर दूसरों के लिए होगा तो दूसरों को फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए उस बात को या फिर उस इंसान को, और आगे बढ़िए लाइफ में। These two cards are very, very, very well connected, my dear Cancerians. So please do the needful, Cancerians. This was all about your reading, your manifestation, positive affirmation and guidances. So hope you liked it and it helped you in the form of guidance. Please do the necessary changes, whatever is required in your life areas. Okay?
क्योंकि सब कैंसेरियंस का स्टोरी एक जैसे नहीं होगा. इट्स अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग. इट विल vary from Cancerian to Cancerian. Okay, so take it as it resonates with your own life, Cancerian. Okay, so see you in my next reading. Wish you all the very best for the changes that you need to do, and please pay heed to the guidances. See you in my next reading. Till then, take care, bye bye, and happy Diwali.